हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को और उसके बाद में पूरा टॉपिक को। ओके, देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। देन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दिस एक्ट गैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट because the 73rd Constitutional Amendment Act provided Panchayati Raj system as a constitutional representation in our system. Okay. Then second statement है this act added 11th schedule into the our constitution. Yes, 11th schedule were added in our constitution through this amendment. Then next one is the this act transforms the representative democracy into participatory democracy. Yes, local community को representation दिया गया ताकि वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सके हमारी डेमोक्रेसी में, ताकि उनका इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर अपब्रिंगिंग हो सके. देन ऑल द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. देन 1, 2, 3 the D option is the correct answer for this question. The next question is which schedule deal with anti-defection law? Schedule 10 which deals with the anti-defection law. Anti-defection law comes in 1995 during the Rajiv Gandhi period. Okay, to deal with the anti-defection law problems. Okay, आपने सुना है कि आयोग की राजनीति, उस टाइम में गयाराम थे, वो कभी उन्होंने एक हफ्ते में 3 टाइम्स पार्टी चेंज कर ली थी. तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि करप्शन ना हो और जो पर्सन है वो लॉयल रहे अपने मॉरल्स के प्रति जिनको लोगों ने चुना है, और गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्टेबल रहे, इस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए 10th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. देन नेक्स्ट है हमारा which one the correct statement regarding the schedule 2nd. Then first statement है provisions relating to emolument, allowances, privileges and so on of the President of India and the governor of states. Yes, this is the correct statements. Schedule 2nd talks about the emoluments and allowances and privileges for the President of India, Governor of States, Speakers, Chairmen of Rajya Sabha and Lok Sabha, Speakers, Deputy Speakers of the Legislative Assembly in the states, and Chairman and Deputy Chairman Legislative Council in the states, Judges of the Supreme Court, Judges of the High Courts and CAG. Okay. Then if we talk about the next statement, forms of oaths and affirmation for the union minister and the candidates for election to the parliament, the members of parliament, judges of Supreme Court, judges of high courts, member of the state legislature, state minister, CAG, and the candidates for election to the state legislature. Okay, this statement deals in the 3rd schedule. Okay. Then next one is provisions relating to administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. जो ट्राइबल एरियाज़ है मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम के इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है थ्रू द शेड्यूल 6th ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. देन नेक्स्ट इज़ provision relating to disqualification of the member of the parliament. It's about the anti-defection law. Okay, which deals in the schedule 10th of our Indian constitution. Then look the next question. How many matters included in the 12th schedule of our Indian constitution? There is 18 matters related included in the 12th schedule. Okay, 29 matters included in the 11th schedule of our Indian constitution. Okay. Then next question is which state is not included in the schedule 6. हमने अभी देखा ऊपर क्वेश्चन नंबर 3rd में
अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम is included in the schedule 6 for the enhancement the position of tribal areas in these areas. okay, वो काफ़ी backward areas हैं. ठीक है. Then next question is which schedule deals with allocation of seats in Rajya Sabha to the states and the union territory? The the schedule 4th in our Indian constitution deals with the allocation of seats for states and the union territory in our constitution. okay, then अब हम starting से देख लेते हैं. फर्स्ट स्केड्यूल डील करता है जो नेम्स ऑफ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट. ये डील कौन करता है? फर्स्ट स्केड्यूल डील करता है. ये आर्टिकल 1 to 4 है. ओके, देन नेक्स्ट स्केड्यूल है सेकेंड स्केड्यूल. ये डील्स करता है provision relating to emolument, allowance and privileges and so on. okay, इसमें कौन कौन आता है? द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड द केग. ठीक है. देन नेक्स्ट थर्ड स्केड्यूल से बात करें तो ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया उनकी ऑथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थर्ड स्केड्यूल में आता है. देन नेक्स्ट है फोर्थ स्केड्यूल. हमने अभी बात किया था जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं जो राज्यसभा की टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, इट डील्स इन द स्केड्यूल फोर्थ. ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ स्केड्यूल, the fifth schedule provide provisions relating to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes. It given in the article 244 in our Indian constitution. Then next one is the sixth schedule. Sixth schedules given provisions relating to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Then if we talk about the seventh schedule, सेवन स्केड्यूल्स में दिया गया है कि जो हमारे जो यूनियन है और स्टेट है उनके पास कुछ पावर्स होती हैं लॉज बनाने की. वो कौन से मैटर पे लॉज बना सकते हैं या कौन से सब्जेक्ट उनके पास हैं, वो कौन सी लिस्ट बताती है? सेवन स्केड्यूल के अंदर लिस्ट बताती है. इसमें 3 लिस्ट दी गई है. फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट. जो फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट उसमें 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं. और जो ये कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे दोनों यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं करंट में. ओके, देन इफ़ वी टॉक अबाउट द एट्थ स्केड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस. इन दिस 22 लैंग्वेजेस आर एडेड. ओके, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओनली 14 लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दिया गया था, बट अब 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं. ओके, देन नेक्स्ट स्केड्यूल है नाइन्थ स्केड्यूल. ये हमारे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की सभा थी उसी ने इसे अमेंड करके ऐड कर दिया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाली जो असेंबली थी उसी ने इसे ऐड किया था इन 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ओके, इट्स डील विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन. पहले ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि कुछ लॉज को है ना जो गवर्नमेंट थी वो सिक्योर रखना चाहती थी कि इस पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, बट अब हो सकता है. इसीलिए इसमें जो लैंड रिफॉर्म्स की जो किए गए थे, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम किया गया था, वो 9th स्केड्यूल में ऐड कर दिया गया था. ओके, देन हमारा 10th स्केड्यूल है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के थ्रू ऐड किया गया. इसमें क्या होता था कि इसमें प्रोविजंस थे ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का अगर वो कुछ भी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट करेगा. ओके, 11th स्केड्यूल क्या है? 11th स्केड्यूल डील करता है पंचायत से. ओके, इसमें 29 मैटर्स इंक्लूडेड है और ये जो 11th स्केड्यूल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है.
इसमें स्पेशल पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पंचायत को, ठीक है। देन 12 स्केड्यूल्स की बात करें तो 12 स्केड्यूल हैं वो म्यूनसिपालिटीज़ से रिलेटेड है और इसमें 18 मैटर्स दिए गए हैं और दिस स्केड्यूल वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ओके, थैंक यू।